So students, today we are going to discuss preparation of aldehydes and ketones from alkenes and alkynes. बहुत ही important lecture होने जा रहा है. इसमें हम बहुत सारे questions करने जा रहे हैं. From alkenes and alkynes. Preparation from alkenes. Number first method is from alkenes. From alkenes we are going to prepare aldehydes and ketones. Now see, the most important method is ozonolysis. ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स. अल्कीन्स को हम ओजोनोलिसिस करते हैं. लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन एंड ओजोनोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन. हम ओजोन को ब्रेक करते हैं. द रिएजेंट यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज, हम ओजोन लेते हैं. ओजोन के साथ हम लेते हैं Me2S डाइमीथाइल सल्फाइड. इट्स कॉल्ड डाइमीथाइल सल्फाइड. और हम यूज करते हैं जिंक. ओजोन डाइमीथाइल सल्फाइड और डाइमीथाइल सल्फाइड के बदले हम जिंक भी यूज कर सकते हैं. ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइमीथाइल सल्फाइड एंड जिंक. द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है या अल्डिहाइड या हमें कीटोन मिलता है. अल्डिहाइड और कीटोन. नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एंड देन प्रोसीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. Now mechanism of the reaction will be like this. हमारे पास में एक अल्कीन है. We have an alkene. This is alkene. इस अल्कीन को हम, this is R and R dash means these two R groups I have kept different. इस अल्कीन को हम ट्रीट करते हैं ओजोन के साथ. अगर हम ओजोन को देखेंगे, ओजोन will be like this. क्या हम इस ओजोन को ऐसे भी लिख सकते हैं? This will be O negative O plus. This is resonance structure of ozone. Now with lone pair of electrons on this oxygen atom. तो यहाँ पे हम ओजोन को लेंगे. दिस इज O प्लस, दिस इज डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O माइनस. नाउ वी नो दैट जो ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज रिच पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये बॉन्ड रिच इन इलेक्ट्रॉन्स है तो इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं. अगर इस बॉन्ड को इस साइड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे प्लस. यहाँ अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा. इस प्लस को ये माइनस अटैक करेगा और ये माइनस ये जो है ये यहाँ अटैक करेगा इस बॉन्ड को, बिकॉज दिस बॉन्ड हैज टू ब्रोकन टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन एटम बिकॉज इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज. इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हमारे पास में एक इंटरमीडिएट बनता है. वी आर गेटिंग एन इंटरमीडिएट. नाउ दिस इंटरमीडिएट इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन where we have a bond with oxygen, and these are bonded to other oxygen atoms. This intermediate is called ozonite. Ozonite is the intermediate formed during ozonolysis of alkenes. Now this ozonite breaks, it undergoes lysis. It breaks, this bond breaks towards this side. We get C double bond O. Let there is one hydrogen atom and one hydrogen atom. Therefore we have one hydrogen atom over here, one hydrogen atom over here. This bond breaks towards this side. If this bond breaks, then this bond has to break. So we get a new compound R C and this is H. This is double bond O. This bond has broken, this bond has broken. This is one compound we get, plus we get R C H single bond O double bond O. Single bond O double bond O. Now this species is treated with M2S dimethyl sulfide. M2S is CH3 SCH3. Now see what happens. This bond breaks towards this side. It becomes negatively charged. This negative charge attacks the sulfur atom and we get Me2S double bond O. That is formation of dimethyl sulfoxide. DMSO is formed. And overall what happens? This bond breaks, resulting in the formation of C double bond O. We get R CH double bond O plus we get Me double bond O, dimethyl sulfoxide. Formation of S double bond O is the driving force of this reaction because S double bond O is a strong bond. This is the mechanism of the reaction, how the reaction proceeds with ozone and Me2S. The aim of using Me2S is to form dimethyl sulfoxide. इसी को हम DMSO कहते हैं. ये हम लेते हैं बहुत सारी जगहों पे सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ना अब क्वेश्चन करते हैं इस पे.
क्या होता है, कौन से अल्डिहाइड्स या कीटोन्स क्या बनेगा, और ट्रिक्स भी यूज करेंगे कहाँ पे क्या मिलेगा। नाउ लेट अस टेक अल्कीन। हम अल्कीन लेते हैं, दिस इज अल्कीन डबल बॉन्ड, this is, for example, let us take first this type of alkene which contains only hydrogen atoms, on sp2 hybridized carbon, and let us take one more type of alkene जिसमें एक साइड हमारे पास में हाइड्रोजन एटम्स है और एक साइड आर ग्रुप्स हैं, और लेट अस टेक वन मोर टाइप ऑफ alkene जिसमें सिर्फ हमारे पास आर ग्रुप्स अटैच्ड हैं, नो हाइड्रोजन एटम। तो इसको भी अगर हम ओजोनोलिसिस करेंगे O3Zn और Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड, इसके साथ ओजोनोलिसिस करेंगे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, दिस बॉन्ड एक्चुअली ब्रेक्स। हमने क्या देखा, ये बॉन्ड ओजोनोलिसिस से ब्रेक होता है, दिस इज ट्रिक, ये बॉन्ड ब्रेक होता है ओजोनोलिसिस से, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O आता है और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O आता है। बस यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ओजोनोलिसिस से C डबल बॉन्ड C ब्रेक होता है और यहाँ पे भी हमें C डबल बॉन्ड O मिलता है, यहाँ पे भी। तो प्रोडक्ट ऑफ द दिस रिएक्शन विल बी H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ब्रेकर्स, वी गेट डबल बॉन्ड O प्लस H डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, दिस डबल बॉन्ड ब्रेकर्स, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O। तो O3Zn और Me2S से हम क्या करेंगे, हम लेंगे O3Zn Me2S एंड वाटर, तो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O H प्लस R C डबल बॉन्ड O H। अगर हम दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इसको ओजोनोलिसिस करेंगे, बट द reagent you have to remember because reagents are different in different ozonolysis reactions, Me2S and water। तो क्या होगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O मिलेगा, वी गेट C R डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O R एंड R। तो क्या हमें कंक्लूजन यहाँ पे मिला, जब भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स जो हैं जिनको ओजोनोलिसिस करना है, अगर उनके पास सिर्फ अल्काइल ग्रुप्स है, अगर उनके पास सिर्फ R ग्रुप्स है, then the product is always ketone, अगर सिर्फ उनके पास R ग्रुप्स हैं, then the product is always ketone, this is R। और अगर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास सिर्फ R ग्रुप्स हैं और दूसरे के पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम है, तो हमारे पास बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन का मिक्सचर बनता है। एंड इफ both the sp2 hybridized carbon atoms have only hydrogen atoms, then the products are always aldehyde, and the product is aldehyde as well as ketone, aldehyde plus ketone। Now this is a trick of the reaction, क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस डबल बॉन्ड के बदले यहाँ डबल बॉन्ड O लाना है, यहाँ भी डबल बॉन्ड O लाना है। ना किस टाइम हमारे पास सिर्फ अल्डिहाइड बनेगा, जब ये सारे ग्रुप्स क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम्स। अगर एक साइड में हमारे पास सिर्फ R ग्रुप्स हैं, दूसरी साइड में कम से कम एक हाइड्रोजन या एक R ग्रुप होगा, देन अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर if both is sp2 hybridized carbon atoms are joined by what bulky groups, then the product will be ketone। Now इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, let us solve one question, this is very important, let us solve one question, let us take this question। इसको हम ओजोनोलिसिस करेंगे, O3Zn H2O और Zn के बदले हम क्या लिखेंगे, Me2S भी लिख सकते हैं ना। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर डबल बॉन्ड ब्रेक हो ओजोनोलिसिस से, यहाँ पे डबल बॉन्ड O मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O मिलेगा, then the product of the reaction will be H डबल बॉन्ड O and the product of the reaction will be डबल बॉन्ड OR। तो एक साइड से हमारा कीटोन मिल गया, दूसरी साइड से हमारा अल्डिहाइड मिल गया। ना ओजोनोलिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। अगर हम ये ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ, नोट डाउन दिस फर्स्ट, applications of ozonolysis,
अगर हम ओजोनोलिसिस अगर हम कैरी आउट करते हैं विद ओजोन एंड जिंक और Me2S एंड वाटर, तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या मिलता है? अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन। यही ओजोनोलिसिस अगर हम करते हैं विद ओजोन एंड हाइड्रोजन peroxide, then the product of the reaction is carboxylic acid. Then the product of the reaction is carboxylic acid, very important. एंड ये पे अगर हम ओजोन को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं NaBH4, then the product of the reaction is and water, then the product of the reaction is alcohol, then the product of the reaction is alcohol. तो हमारे पास में ये जो जिंक Me2S है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और अगर हम ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं तो अल्कोहल मिलता है, और अगर हम ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं तो अल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। नाउ लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। ओके, गॉट इट? Now see, we have a question over here, same type of question. Now this is H and this is CH3 and this is CH3. Let us solve this question. We are treating with it ozone, Me2S or zinc and water. This gives product A. We are treating it with ozone, H2O2 and water. This gives product B. And we are treating it with ozone, NaBH4 and water. This gives product C. Now what are A, B and C? C यहाँ पे हम यूज करते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड, तो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, हमारे पास में क्या मिलेगा? दिस इज CH3 डबल बॉन्ड हो एंड दिस इज डबल बॉन्ड हो CH3, तो हमारे पास में कीटोन मिल गया या अल्डिहाइड मिलता है अगर यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन होता। अब मैंने क्या कहा, अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो ये जो ग्रुप है ये कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे भी अल्कोहल बनेगा, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? दिस इज CH3, दिस इज OH, दिस इज CH3, दिस इज OH, दिस इज हाउ अल्कोहल इज फॉर्मड। और यहाँ पे अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, this is mild reductive ozonolysis and this is strong oxidative ozonolysis. अगर strong oxidative ozonolysis करेंगे तो मैंने क्या कहा, जो ये डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो गई, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। now this is CH3 COOH and this is CH3 COOH. this is the product of the reaction. this is very important reaction. हमने यहाँ पे डिस्कस की हाउ वी ऑब्टेन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम अल्कीन्स, और उसके अलावा मैंने और भी डिस्कस किया अगर हमें ओजोनोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने हैं तो क्या करना है, अगर हम ओजोनोलिसिस से अल्कोहल्स बनाते हैं तो क्या करना है। गॉट इट? नाउ लेट अस टेक फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम अल्काइन्स। फ्रॉम अल्काइन्स, from alkynes, that's from hydrocarbons. These alkenes were also hydrocarbons. now alkynes को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो alkynes होते हैं ये हमारे पास या तो टर्मिनल alkynes होते हैं या हमारे पास नॉन टर्मिनल alkynes होते हैं। टर्मिनल अल्काइल उसको कहते हैं जिसके टर्मिनल पे CH बॉन्ड होता है, जिसके sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इस कार्बन पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होगा। now this is terminal hydrogen, this is terminal hydrogen, in this case terminal hydrogen is absent, this is called non terminal alkyne, non terminal alkyne, and these two are called terminal alkynes। terminal alkynes, टर्मिनल अल्काइन वो होता है जिसके sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है, मींस दिस कार्बन इज sp, दिस इज sp, दिस इज sp, यहाँ पे sp पे क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इन दोनों को हम टर्मिनल कहते हैं और इसको नॉन टर्मिनल अल्काइन कहते हैं।
Now see how can we obtain aldehydes and ketones from alkynes. हम वही रिएक्शंस करेंगे जो हमने अल्कीन्स में अल्कोहल्स प्रिपेयर करने के लिए की थी. Number first, we will carry out mercuration reaction, treatment with mercury 2 plus in presence of acid H plus obtained from H2SO4. वहां पे हमने इसको कहा था इट्स ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन. सिमिलर इज द केस ओवर हियर. एंड एक और रिएक्शन करेंगे दैट इज रिएक्शन विद B2H6 और BH3 एंड H2O2 दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये दो रिएक्शंस करेंगे. इन दोनों रिएक्शन से हमारे पास में क्या मिलेगा? इन दोनों रिएक्शन से हमारे पास में अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा. ना बहुत इजी है, हमें पता है ये फॉलो करता है मार्कोनी-कॉफस रूल. मार्कोनी-कॉफस रूल मींस H पॉजिटिव जो है वो ऐड होगा टू दैट कार्बन एटम व्हिच बियर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, और इन दिस केस H पॉजिटिव ऐड होगा टू दैट कार्बन एटम व्हिच बियर्स मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. Now what happens? What will be the product of the reaction? I will not discuss the mechanism because I have discussed mechanism of this oxymercuration, demercuration, and mechanism of hydroboration, oxidation reaction in previous lectures. That's in case of alcohols. I have discussed this thing. Now let us take terminal alkyne first. अगर हम टर्मिनल अल्काइन को CH ट्रिपल बॉन्ड CH को ट्रीट करेंगे विद Hg2+. Hg2+ क्यों यूज करते हैं हम? तो H2SO4. सी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. हम Hg2+ क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली इन दिस केस वी आर एडिंग H+OH- and in this case overall we are adding H+O- and nothing else. From competitive exam point of view आप याद रखना मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन में हम सिर्फ H+OH- को ओवरऑल ऐड करते हैं और हाइड्रोबोरेशन में भी यही करते हैं. ना हमें क्या जरूरत पड़ी? हमने H2+ को यूज किया. इट एक्ट्स एज अ लेविस एसिड. हमें लेविस एसिड क्यों जरूरत पड़ा? हमें पता है जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मीन्स यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होती है. जितना भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा उतने एटम ज्यादा क्लोज होंगे. जितने एटम ज्यादा क्लोज होंगे उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है. इसलिए हम पहले क्या करते हैं, इसको हम लेविस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं. लेविस एसिड के साथ ट्रीट करने से ये बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है. मीन्स यूज ऑफ Hg2+ is to decrease the strength of this carbon-carbon triple bond. Otherwise, it has no utility over here. ओवरऑल क्या होगा इस रिएक्शन में? एडिशन ऑफ वाटर. अगर मैकेनिज्म भी देखेंगे थोड़ा सा, मैंने आपको मैकेनिज्म पहले ही इसका डिस्कस किया है. यहाँ पे साइक्लोप्रोपीन टाइप ऑफ रिंग फॉर्म होती है. This is Hg2+. This type of compound is formed, and in the next step what happens? Water attacks दिस बॉन्ड ब्रेक्स. ये बॉन्ड ब्रेक होता है. हमारे पास में OH- और H+ होता है. OH- अटैक करता है यहाँ पे. OH- अटैक जब करेगा यहाँ पे तो क्या मिलेगा? दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज OH, दिस इज डबल बॉन्ड C, दिस इज Hg, एंड दिस इज हाइड्रोजन. दिस Hg इज एक्चुअली HgOAC. दिस बॉन्ड लीव्स, ये बॉन्ड लीव होता है. दिस बॉन्ड लीव्स, ये बॉन्ड लीव होके यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है. यहाँ पे टॉटामेरिज्म होता है ना. टॉटामेरिज्म कहाँ पे पॉसिबल है? when you have ene and all, there is possibility of tautomerism. This is all, this is ene separated by single bond. All ene, there is possibility of tautomerism. तो क्या होगा? ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा. हमारे पास में क्या मिलेगा? दिस इज H, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज H3. एक और हाइड्रोजन यहाँ से आएगा. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. This is how the reaction takes place. ऐसे रिएक्शन टेक प्लेस करती है. ओवरऑल क्या होता है हमें देखना है. ओवरऑल क्या है? ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर होता है. तो एडिशन ऑफ वाटर फॉलो करता है मार्कोनी-कॉफस रूल. यहाँ पे मार्कोनी-कॉफस रूल का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे बोथ ही कार्बन एटम्स दे आर सिमेट्रिकल. तो H+OH- को अटैक करेंगे. लेट द OH- अटैक दिस कार्बन, then this carbon abstracts hydrogen plus. तो कौन सा प्रोडक्ट आया? OH ने यहाँ अटैक किया.
और ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ने अटैक किया ना। अब क्या हो जाएगा, दिस विल चेंज इनटू, दिस इज इनॉल फॉर्म, इनऑल it will change into keto form, keto enol tautomerism, means this bond will break, this will become minus, it attacks hydrogen, this bond will move over here, we get enol, that is CH3, this is formation of aldehyde। तो यहाँ पे आपको एक ये कंक्लूजन मिला, अगर हमारे पास टर्मिनल अल्काइन होगा, दैट्स स्टाइलिन, वो हमेशा that will always give aldehydes, never ketones, means one point we got over here, if we have a terminal alkyne in which there are at both the terminals we have hydrogen atom, always the product formed on mercuration and demercuration, always the product formed will be aldehyde, never ketone, always the product formed will be aldehyde। अगर हमारे पास एक और टाइप का टर्मिनल अल्काइन होता जिसमें एक साइड में हमारे पास R ग्रुप होता है, यहाँ पे R ग्रुप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ये हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, हम इसको ऐड करते हैं, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन Hg2 प्लस H2SO4 एंड water, it may be given in place of Hg2 plus, it may be given HgOAC whole twice, OAC is acetate, means it will be HgOAC OAC, this leaves Hg plus, this leaves Hg plus, that's Hg2 plus। ना क्या होगा, मार्कोनिकॉप्स एडिशन, ओवरऑल रिएक्शन में H प्लस कहाँ ऐड होगा, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स एडिशन होगा, हाइड्रोजन will be attached to that carbon which has maximum number of hydrogen atoms, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे OH अटैक करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा, we get CH3 C OH double bond C H and H। now this is enol, this enol undergoes tautomerism, it undergoes tautomerism to give what type of compound, we will see what type of compound we are going to get, C double bond O single bond CH3, we get ketone, in this case product is always ketone, product is always ketone। okay, got it, in this case product is always ketone, in this case product is always ketone। तो हमारे पास में क्या था, अगर हमारे पास ये वाला टर्मिनल अल्कीन था तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, अल्डेहाइड CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C H3, दिस इज अल्डेहाइड। और अगर हमारे पास यहाँ फॉर एग्जांपल क्या था, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड और एनी अदर ग्रुप, आई विल टेक R ओवर हियर, अगर ये कंपाउंड था इसको हमने मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की तो क्या प्रोडक्ट आया, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब मैं ले लूंगा कौन सा अल्काइन, दैट इज नॉन टर्मिनल अल्काइन। अब देखेंगे वहां पे क्या होगा, अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल अल्काइन होगा, नॉन टर्मिनल अल्काइन अगर होगा तो क्या होगा, मैं दो टाइप्स के नॉन टर्मिनल अल्काइन्स लूंगा। यहाँ पे हम करेंगे ऐड H प्लस OH माइनस, oxymercuration demercuration, overall reaction involves addition of water and nothing else। now see क्या होगा, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस पर कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा, दिस बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अगर इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगी, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा और इस कार्बोकेटाइन पे एक अल्काइल ग्रुप ऐड है, ये इसकी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। अगर इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करेंगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन मिलेगा, इस कार्बोकेटाइन पे ज्यादा बेटर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये प्लस आई इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू हियर, देयरफॉर बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स दिस साइड। इस कार्बन पे हमें क्या मिलेगा, इस कार्बन पे हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा, बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स दिस साइड, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, अगर ये माइनस बन गया तो ये माइनस अटैक करेगा H प्लस को और ये OH माइनस अटैक करेगा यहाँ we get the product R C double bond C OH
CH2R. Now this is enol. It converts into ketone. This is RC. This is RCH. Single bond C, double bond O, single bond CH2, single bond R. This is the product of the reaction. अगर हमारे पास ये वाला अल्कीन है तो अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ की ओर ब्रेक करेंगे, दिस विल बिकम पॉजिटिव चार्ज. Now this positively charged carbocation is stabilized by tertiary bulky alkyl group. This is pulse effect group. It increases electron density on over here. Therefore bond has to be broken towards this side. तो हमारे पास में ये नेगेटिव बनेगा. अगर इसको आप ट्रीट करेंगे H प्लस OH माइनस के साथ तो H प्लस को अटैक करेगा ये और OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पे. प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी C. दिस इज H and this is double bond. This is C. This is C. R and this is OH. This is enol. Now this enol undergoes tautomerism. This enol undergoes tautomerism. It becomes negative. It abstracts hydrogen. We get the product R C H and H, single bond C, double bond O, single bond C, R and R. ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकलने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एमएस में क्वेश्चन पूछा गया है, 1-2 बार पूछा गया है एसोसिएशन रीजनिंग में. यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलने जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए बिकॉज दिस अटैक्स हाइड्रोजन एटम. ओके, ना कंक्लूजन ये निकलता है, अगर हम टर्मिनल अल्काइन जिसमें दोनों साइड से हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो हमारे पास में अल्कीन बनता है, सॉरी कीटोन बनता है. उस कीटोन के दिस इज कार्बोनाइल कार्बन एंड दिस इज अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है. दिस इज कीटोन and this ketone is attached to the carbon. This carbon is called alpha carbon. और जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम्स है उनको हम अल्फा हाइड्रोजनस कहते हैं. मीन्स इसको हम अल्फा हाइड्रोजन इन हाइड्रोजनस को अल्फा हाइड्रोजनस कहते हैं. हमारे पास में कीटोन है, कीटोन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा कार्बन है. अगर उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजनस है उनको अल्फा हाइड्रोजनस कहा जाता है. ना अगर हमारे कार्बोनाइल कार्बन के नेक्स्ट पोजीशन पे मीथाइल ग्रुप है तो इस कीटोन को हम मीथाइल कीटोन भी कहते हैं, मीथाइल कीटोन. नाउ दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन. दिस इज वन. लेट मी टेक सेकंड एग्जांपल व्हिच वी गेट फ्रॉम दिस. दिस इज आल्सो methyl and this is also alpha carbon. These are also alpha hydrogens. और दिस इज आल्सो methyl ketone. ये भी हमारे पास में methyl ketone है. Now let us take this compound RCH, single bond C, double bond O, CH2R. ये भी हमारे पास में क्या है, अल्फा कार्बन. और अल्फा कार्बन पे हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन एटम्स. अल्फा कार्बन पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं. These are अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, बट इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम्स है. यहाँ पे अगर हमारे पास इन दो हाइड्रोजन के बदले R ग्रुप्स होते, जो हमारे पास यहाँ पे कीटोन मिल गया, इस कीटोन के अल्फा कार्बन पे जो हमने एक अल्फा कार्बन बनाया, इस कीटोन के अल्फा कार्बन पे सिर्फ R ग्रुप्स हैं, देयर इज नो हाइड्रोजन एटम. ओके, बट ऑन दिस साइड देयर आर हाइड्रोजन एटम्स. ना कहने की बात ये है, ये दिस इज कॉल्ड मिथाइल कीटोन, दिस इज कॉल्ड मिथाइल कीटोन, दिस इज नॉट मिथाइल कीटोन. दिस कीटोन अंडरगोज, दिस शोज iodoform test. Iodoform test. Iodoform is nothing. We treat it with iodoform CH3 and we get yellow precipitate. Formation of yellow precipitate indicates the presence of the ketone which have hydrogen atom at alpha carbon on alpha carbon atom or methyl group. These are called methyl ketones. Methyl ketones obviously show iodoform test, and other ketones on which there are alpha hydrogen atoms present, they also show iodoform test. For this iodoform test, the necessary condition is that जो ये अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए, उस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए.
अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आयोडोफॉर्म नहीं टेस्ट नहीं दिखाई दिया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास कीटोन है, दिस इज वन कीटोन, मेरे पास एक और कीटोन है, मेरे पास एक और कीटोन है, इन तीन में से आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन दिखाएगा? नेसेसरी कंडीशन इज हमें अल्फा कार्बन ढूंढना है। दिस इज कार्बोनाइल कार्बन एंड दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज कार्बोनाइल कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज कार्बोनाइल कार्बन एंड दिस इज अल्फा कार्बन। अब हमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन देखने हैं, अगर हैं तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, अगर नहीं है then there will be no iodoform test। अल्फा हाइड्रोजन हैं, this will show iodoform test। इसको हम मिथाइल कीटोन भी कहते हैं। यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये कार्बन जो है दिस इट हैज 4 वैलेंसीज 1 2 3 4। पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट देयर ऑन दिस कार्बन, देयरफॉर दिस डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड जो है ये आयोडोफॉर्म नहीं टेस्ट नहीं दिखाएंगे, बट ये वाला कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, क्या ये कंपाउंड डज दिस कंपाउंड शो आयोडोफॉर्म टेस्ट? डज दिस कंपाउंड शो आयोडोफॉर्म टेस्ट? क्या ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा? क्या करना है, अल्फा कार्बन देखना है, दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, यस वन अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर इट विल शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, इट विल शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा आयोडोफॉर्म टेस्ट को, अलग से एक लेक्चर दूंगा, मतलब आपको डरने की बात नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आज को आपको ये समझाया कि हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। यहीं पे अगर हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, that's also addition of water but that is in a different way। hydroboration oxidation reaction, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब BH3, मतलब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, या B2H6, यहाँ पे भी हम H प्लस OH माइनस ओवरऑल ऐड करते हैं, बट यहाँ पे H प्लस उस कार्बन पे अटैक होता है जिसमें लेस हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ना सी ये तो सिमेट्रिकल है, यहाँ पे चॉइस नहीं है, तो H positive will be attacked on one carbon and OH negative on the other carbon atom, there is no मतलब there is no problem। ये इन मिला हमें, ये इन ऑल मिला, ये इन ऑल हमें देगा कीटोन, दिस इज कीटोन, मिथाइल कीटोन, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाए ना। अगर हमारे पास में ये टाइप ऑफ कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इसको हमें हाइड्रोबोरेशन करनी है B2H6, मीन्स वी आर एडिंग H प्लस एंड OH माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली इन दिस केस इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट H प्लस, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल BH3 होता है, तो हम यहाँ पे अपोजिटली इसको रिएक्ट कराते हैं। इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे नहीं है, जिस पे हाइड्रोजन है उस पे हम OH का अटैक करते हैं और जिस पे नहीं है उस पे हम H प्लस का अटैक कराते हैं, मीन्स अपोजिट। इट सीम्स दैट इट इज एंटी मार्कोनिक ऑप्शन। यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ना दिस इज इन ऑल, ये इन ऑल क्या होगा, it will change into other isomeric form that is called कीटोफॉर्म, दिस इज कीटोफॉर्म। क्या ये कीटोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा? नाउ सी दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज कार्बन नाइल कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, इट विल शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। अब मैं इस लेक्चर के कुछ 5-6 क्वेश्चंस बनाऊंगा, आपको अपने ग्रुप में डालूंगा, यू विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस वेरी इजीली। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।